presence? Do you love His presence? Is that something that is true to you? Are they just lyrics or is it something that is true to you? क्या ये सिर्फ गाने की पंक्तियां हैं कि आप सच्चाई में इन बातों पर मानते हैं? Do you thrive in His presence? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो है बसना चाहते हो? Is His presence a place that you visit or is His presence a place that you live in? क्या आप उसकी उपस्थिति में सिर्फ भेंट करते हो या आप उधर रहते हो? Can we sing this one more time? हम इसको एक बार गाएंगे. If you are one of those people who has said that I don't feel the presence of God. अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप बोलते हो कि मुझे परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव नहीं होती है. Like I hear about it. I feel the goosebumps. और मैं जो उसके बारे में सुनती हूँ और मुझे वो जो है कहीं-कहीं तो भी अनुभव होता है. But I've not really understood the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने समझा नहीं है. Can I tell you? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. Even if you tried, अगर आपने कोशिश करी होती तब भी, all your lifetime, आपकी पूरी जिंदगी भर, you cannot understand His presence. आप उसकी उपस्थिति को समझ नहीं पाओगे. But what you can do लेकिन आप एक काम कर सकते हो is you can be grateful. कि आप धन्यवाद दे सकते हो. You can celebrate His goodness. आप परमेश्वर की भलाई का उत्सव मना सकते हो. The promise of His presence is certain. और परमेश्वर की उपस्थिति, वो जो वायदा है, वो निश्चित रूप में होगी. So whether you feel it or not, और आप उसको अनुभव करें या ना करें, it is there. वो मौजूद है वहाँ पे. But the more grateful you become, आप जितना अधिक धन्यवाद दोगे, the more gratefulness is not just from your lips, but it starts coming up from the inside. और वो सिर्फ आप अपने होठों से नहीं, लेकिन जब It आपके is a अंदर से आते gushing river. हैं, तो वो जो है एक बहती नदी के समान It है. is a gushing river. और वो जो है तेजी तौर से बहने वाली नदी के समान है. Can we sing that one more time? एक और बारी गाएंगे उसको. And can you truly enjoy His presence? और परमेश्वर की उपस्थिति को आप पूरी रीति से आप उसका आनंद उठाएं. Oh, I love your face. I love your kisses. I love your embrace. I love your presence. I love Your face. Oh, I love your face. I love Your kisses. Oh, I love your embrace. I love your presence. And I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. I stand in awe of You. Yes, I stand. I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. Holy God, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. Lift your voice and say, Holy God, Holy God, to whom all praise is due. I stand in
pray in tongues for the next 30 seconds. अगले 30 सेकंड आप अन्य भाषाओं में आराधना करें। Lift your voices and pray in tongues. आप जो अपने आवाज़ों को ऊंचा उठाएं और अन्य भाषाओं में आराधना करें। To whom all praise is due, I stand in awe of you, Holy God. To whom all praise is due, I stand in awe. We love you, Jesus. We love you, Lord. Father, what words can we use? What can we say? What can we bring that is worthy of a king like you? पिता आपके That समान is worthy of a lover of our soul like you. पिता आपके समान उस राजा के सामने हम क्या शब्द बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं पिता, जो आपके समान इतने योग्य है पिता। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। We love you, Lord. We love you, Jesus. My most beautiful one. मेरे सबसे खूबसूरत, We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं पिता। We love you, Lord. आपसे प्रेम करते हैं पिता। My strength when my muscles grow weak. जब मेरे पसलियाँ कमजोर पड़ जाते हो तो आप मेरे सामर्थ हो। When my mind is clouded, you are the wind that drives away all doubt. और जब मेरा मन जो है पूरे उलझनों में बादलों के समान घिरा हुआ है, तब आप इस प्रकार के झोंके के समान आ जाते हैं कि सब कुछ आप जो हटा देते हो। I love you, Lord. आपसे प्रेम करते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 Just take your seats and just love on Him for a little while longer. आप सब बैठ जाए और यीशु मसीह से प्रेम करें। If your heart is overwhelmed, it's His love that He's pouring out over you. अगर आपका हृदय भर आया है तो परमेश्वर का प्रेम है जो वो आपके अंदर उंडेल रहा है। And all you had to say was, I love you. और आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते That's हैं। all you had to say, and it moved His heart आपको बस to pour His heart over you. आपको सिर्फ इतना ही बोलना था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो अपने कार्य की शुरुआत करेगा। So can we just love Him back for a few more minutes? और कुछ और क्षण आप उस परमेश्वर से आप प्रेम करें। Lord, continue to speak to us. परमेश्वर आप हमसे बातचीत करते रहें।
Father, when we leave this place, पिता जब हम इस जगह से जाएंगे let us be like those barrels that were filled to the brim, और पिता हम उस पात्र के समान हो जो पूरे ऊपरी तरीके से like हम those भरे हुए थे stone jars that were filled to the brim. और जो मिट्टी के पात्र थे जो बिल्कुल ऊपरी तरीके से भरे हुए थे उस And समान हम बने And when what pours out of us, it would pour pure wine of the Spirit of God. और जो हमारे अंदर से उंडेला जाएगा वो जो है पवित्र आत्मा की दाखरस के समान हमारे अंदर से उंडेल पाए पिता Whatever we've received inside of us, do the accelerated work that when we go out, it would bless other people. पिता जो हमारे अंदर आपने कार्य किया है और जब हम बाहर जाए लोगों से मिले तो पिता वो तेजी गति से वो सब हमारे अंदर से कार्य करे पिता We thank you, Father. आपका धन्यवाद पिता We thank you, Lord. आपका पिता धन्यवाद पिता In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. So, I don't want to take up all this time because I really believe that that the men and women of God over here should bless you before you leave. और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती क्योंकि विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के दास और दासी वो आप पे आशीषित करें Yeah. But I know you're already blessed. लेकिन विश्वास करते हैं आप पहले से ही आशीषित हुए हैं Amen. Amen. Very honestly, even before you got here, you were blessed. और आप यहाँ के आने से पहले आप आशीषित थे Now that you've come here, you know how much you are blessed. और जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो आप समझ रहे हो कि आप कितने आशीषित हैं Amen. 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 So, as this day has gone and as the flow of things has been, I am left without a sermon. और Without a sermon, without translation also. But I still believe. See, if the Lord is going to send you a word that has to come to you 3 times, अगर परमेश्वर को आपके पास एक वचन भेजना है तो वो 3 बारी आपके पास आना चाहिए that means He is very serious about what He's telling you जिसका today. मतलब परमेश्वर आपको जो बता रहा है परमेश्वर उसके See, बारे में बहुत already गंभीर if है। He's telling you something once, अगर परमेश्वर एक बारी आपको बता रहा है that's it, तो वो ठीक है right? Some of you believe that you need to confirm what God is saying with somebody else. क्या आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता है जो परमेश्वर ने आपको बोला है उसके बारे में कंफर्मेशन किसी We और से have लेना some है of those. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं Not in our churches, हमारे के लिए समय नहीं somewhere else. कहीं और तो They say God must have said it, और वो बोलते हैं कि शायद परमेश्वर ने बोला होगा but now a man of God और अभी परमेश्वर के दास ने has to confirm it. तो उस परमेश्वर को के दास को वो कंफर्म करना पड़ेगा That's not you. वो आप नहीं हो If that's you, don't make eye contact with me. अगर आप हो तो मेरे सामने नजर ना मेरे साथ नजर ना मिलाए Okay, everyone's like making sure like okay. Praise God. Then when the Lord repeats it the second time, फिर जब परमेश्वर दोबारा उसको दोहराता है He's saying, listen, I am not taking this lightly anymore. तो परमेश्वर कहता है कि साधारण रीति में नहीं बोल रहा This आपसे is serious stuff. ये गंभीर बातें आपको बोल रहा हूँ And then if He's telling you the third time, और फिर परमेश्वर तीसरी बात then you आपको have no बताता है। excuses. तो आपके पास कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है You cannot say, Lord, but I didn't know. आप तब बहाने नहीं बना सकते ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता था परमेश्वर Lord, you did not tell me clearly. परमेश्वर आपने स्पष्ट रीति से मुझे It बताया नहीं it's now coming from the third person. अभी ये तीसरे व्यक्ति से आपके पास आ रहा है So we have no excuses. तो अभी हमारे पास बहाने नहीं है Nobody in this room will fail. इस कमरे में कोई भी व्यक्ति जो है वो हारेगा नहीं Nobody in this room will miss their destiny. और इस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं खोएगा Nobody in this room will lose sight of where they are going. और इस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति इस अपने मार्ग को खोएगा नहीं कि वो किधर जा रहा है Amen. 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 Sit. आप सब बैठ जाइए So I'm asking the Lord, what do I tell these people? मैं परमेश्वर से पूछ रही हूँ कि मैं आपके लोगों को क्या बोलूं
And I preached a sermon in church last Sunday. और पिछले रविवार And कलीसिया में मैंने the Lord said, preach the same thing. और परमेश्वर ने कहा वही प्रचार करो। Now I said, I am not Pastor Vijay Belola. मैंने बोला कि मैं पास्टर विजय बेलोला नहीं हूँ I can't take the same sermon and make it sound new. और मैं वही प्रचार को देकर जो है नई बातें नहीं बोल सकती। I will repeat the same thing, Lord. मैं परमेश्वर वही बातें जो है दोहरा सकती हूँ। So the Lord said, okay, fine. परमेश्वर I'll ने give कहा you कि- something new. परमेश्वर ने कहा कि तुमको कुछ नई बातें बताऊंगा। Amen. Amen. Weren't you blessed with the session in the morning क्या आप and the session- session before mine? क्या आप जो Come on. सुबह से जो भी सेशन में आशीषित थे What blessed men and women of God in our midst. और हमारे बीच में कितने आशीषित परमेश्वर के दास और दासियां मौजूद हैं। You know, when we started church, जब there हमने- was a girl that had come to church with us. जब कलीसिया की शुरुआत करी थी तो एक लड़की थी जो हमारे पास आई थी। And when she heard Vijay preach in church for like a couple of Sundays, जब उन्होंने जो सुना पास्टर विजय को कलीसिया में प्रचार करते हुए बहुत सारे she's रविवारों like, में, whenever I come to church, I feel like I'm in one of those powerful conferences. और वो बोलती थी जब भी मैं कलीसिया में आती हूँ मुझे ऐसे लगता है बहुत ही बड़े सामर्थ्य कॉन्फ्रेंस में हूँ मैं। And that's when we realized that's exactly what it was. और हमने समझा कि वो वही था। We used to go conference to conference searching for this feeling, this rush. और हम जो है इस अनुभव के लिए हर कॉन्फ्रेंस में जाते रहे Right? Because our churches were getting there. क्योंकि Or they were going away from there, one of the two. शायद हमारी कलीसिया उस तरफ जा रही थी या उससे दूर जा रही थी। But somewhere along the way, the excitement of being in the house of God had become very traditional, very ritualistic. और जो है कलीसिया में रहना जो है बहुत ही जो है वो जो है बिल्कुल जो है पारंपरिक तौर उस समान उस रीति में हो गया था, बहुत ही आलसपना हो गया था। We forgot that coming into the presence of God every time, not just Sunday, every time coming into the presence of God meant that we are meeting this God who is able to manifest His power and His presence. और हमने समझा कि जब भी हम कलीसिया आते थे हमने ये देखा कि ये जो परमेश्वर है वो अपने सामर्थ को अपने उपस्थिति के द्वारा वो प्रकट करता है और हमने उसको देखा। We forgot He comes to church with us. हम ये भूल गए कि वो हमारे साथ कलीसिया में आता है And we started looking for Him only in conferences. और हम जो है इस परमेश्वर को सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में ढूंढते रहे। That's why as soon as a meeting would be announced, people would borrow money to sign up. और जैसे ही एक मीटिंग जो है बोला जाता था लोग उधार लेके उस मीटिंग में जाते थे Oh, they would go to the pastor, please give concession. और जो है पासवान के पास जाते थे और बोलते तो कि थोड़ी छूट दे दो आप हमें। But you are in a house where that is not your story. लेकिन आप एक ऐसे घराने में हो जहाँ पे आपकी कहानी वैसे नहीं है। You are in a house where when you open the word starts speaking to you. आप ऐसे घराने में हो जब आप वचन को खोलते हैं तो वो वचन आपसे बात करता है। Amen. You are in a house where the voice of God is not uncommon. नहीं, आप ऐसे घराने में हो जहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है कोई जो है असाधारण रीति में नहीं है। Amen. Amen. I'm not saying these things because Vijay is my husband and Lindsay is my friend. नहीं। I'm telling you these things because I have journeyed with them enough to see the hand of God on their life. और मैं ऐसे ही उनके बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि उनके साथ उनके परमेश्वर के साथ जो सफर है उसमें मैं उनके साथ रही हूँ इसके लिए मैं बता रही हूँ And I आपको। see how much they sacrifice to bring what they bring to you the way that they do. और मैं देख रही हूँ कि वो जिस प्रकार आपके सामने वचन को लाते हैं कितने बलिदानों के बाद लेकर आते हैं जो आपके सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। So you are blessed. तो आप आशीषित हो। Amen. Amen. And for every other church that's represented in this place, और यहाँ पे बैठे हर उस दूसरे कलीसिया जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे your हैं pastors are the same. और आपके पासवान वैसे हैं। Hey, come on. Amen. Represent your pastors well. I will आप- call them. अपने पासवानों को आप अच्छे से उनका प्रतिनिधित्व करो। See, if you don't celebrate what you already have, अगर आप उसका उत्सव नहीं मनाते जो आपके पास है then you are not making a demand on the anointing on their life. तो उनके जो जीवन के ऊपर जो अभिषेक है उसके बाद में आप उसकी मांग नहीं कर When रहे। you celebrate what's over them, जब आपके परमेश्वर के दास के ऊपर जो है जब आप उसका उत्सव मनाते हो then the Lord starts giving them more तो तब परमेश्वर उनको और अधिक देता है so that you can celebrate more. ताकि आप और उत्सव मना सके। So celebrate your leader right now. अपने अगुओं की आप उत्सव मनाएं अभी। Celebrate, celebrate. Come on, people. You are people who know who your God is. आप ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आपका परमेश्वर कौन है। Amen.
Come on, take a seat. Take a आप सब seat. बैठ जाए। This is still nothing of what I want to share. So clearly, I am just going to end this day today. और That's my job. आज के दिन का मैं अंत करूंगी। दिन का अंत. So dramatic in Hindi. Okay. So, I'm going to quickly go through the story. We know the story of Mary and Martha, right? Sitting at the feet of Jesus. हमें मरियम और मार्था की कहानी के बारे में पता है जो यीशु के चरणों में बैठते थे। Yeah. Jesus goes to a village. यीशु एक गांव में जाते In हैं। Luke chapter 10, it says Jesus goes to a village. लूका का सुसमाचार 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु जो है एक गांव में जाते हैं And it says Martha invited him home. और मार्था ने जो है यीशु को अपने घर में न्योता दिया। Okay. So now, if you read the story, it's in Luke chapter 10 and John chapter 11, the references of Mary and Martha. From going, it starts with village. Jesus going to a village where Martha lived. और जो है उस सफर की शुरुआत ऐसी होती है कि यीशु जो है उस गांव में जाते हैं जहाँ पे मार्था होती है। To Martha's village. फिर वो मार्था का गांव कहलाता है। वाओ। Hey, what you do with the presence of God can change how your location describes you. और जो आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ करते हैं, आप जहाँ पे है उस स्थान में एक बदलावट आ जाती है। Okay, so we know this story. हम इस कहानी को जानते हैं। Jesus goes there, he's teaching them things. यीशु जाते हैं वहाँ पे उनको कुछ बातें सिखाते हैं। And Mary is sitting at the feet of Jesus. मेरी जो है यीशु के चरणों पे बैठी है And Martha wants to serve. और मार्था जो है वहाँ पे सेवा करना चाहती है। Now this is the typical kind of sermon you'll find in women's meetings. और जो है वुमेन्स की मीटिंग में आपको इसी प्रकार के जो है प्रचार आपको सुनेंगे। Oh, if you want to encourage people to join intercession prayer. अगर आप चाहते हो कि और लोग जो है बिचवाई की प्रार्थना में आए, उनको अगर आप प्रोत्साहन देना चाहते हो। These are tricks and tips that people use. ये जो है कुछ ट्रिक्स है जो लोग उपयोग करते I हैं। am not tricking you into anything today. मैं आपको जो है किसी चीज में आपको ट्रिक नहीं कर In रही। fact, I want to first tell you that this whole idea of pitting Mary against Martha is not of God. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी और मार्था को एक दूसरे के सामने लाना, उनके विरोधी खड़ा करना, वो ही गलत बात है। That was never God's intention. परमेश्वर का उद्देश्य वो नहीं था। That was never Jesus' plan. वो यीशु मसीह की योजना ऐसी थी ही It is नहीं। not Mary or Martha. वो मरियम या मार्था ऐसा नहीं है। Because when you go to church, you'll find some of those people. क्योंकि जब आप कलीसिया में जाएंगे इस प्रकार के लोग आपको वहाँ पे Again, दिखेंगे। not in our church. हमारे कलीसिया में नहीं, Other churches. दूसरे कलीसिया में। Where they'll say, Pastor, I want to join intercession. I want to pray. That is my role. और जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुझे बिचवाई प्रार्थना में आना है और मेरी जिम्मेदारी वही है। The same sister, you'll say, why don't you also help with setting up the chairs? Say, no, Pastor. I have back problem. और उसी बहन को अगर आप बोलोगे कि जो है कुर्सियाँ रखनी है तो बोलती है मेरे को कमर में दर्द है, Dust allergy. और मुझे जो है धूल से एलर्जी है। So I cannot do that, but I can pray. और मैं 24 hours I can pray. I'll show you all my books. All the points are there, prayer points. और जो है ये सब काम नहीं कर सकती, प्रार्थना कर सकती हूँ। बहुत बड़े बड़े पुस्तक है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकती हूँ। Because somewhere along the line, they have understood that you can do one or the other. You cannot do both. क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एक ही बात कर सकते, ये दोनों बात नहीं कर सकते। That's a lie. ये झूठ है। If not you, आप but नहीं। if someone doesn't want to do something in church, अगर कोई जो है कलीसिया में कुछ बात नहीं करना चाहता, like if they don't want to do anything that involves physical strength, और जो है जो शारीरिक रीति में अगर कोई ताकत लगता है, उन कामों को अगर कोई नहीं करना चाहता, either it's their ego या तो वो उनका घमंड है or they're lazy. या वो आलसी है। It's a joy to serve in the house of God. परमेश्वर के घराने में सेवा करना It's a बहुत ही आनंद की बात privilege है। to serve in the house of ये God. जो है अपना एक अवसर है परमेश्वर द्वारा दिया गया, जब हम परमेश्वर के घराने में सेवा But करते हैं। sometimes what we want to do in the house of God can become so important to us that it distracts us from the real reason why we go to the house of God. लेकिन जो है हम जो परमेश्वर के घराने में जो करते हैं वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के घराने में हम क्यों आए हैं। Now see, Mary and the feet of Jesus have a very long relationship. मरियम और परमेश्वर यीशु मसीह का जो चरण है, उसका जो रिश्ता है वो बहुत लंबा है। She sat there when she was learning.
जब वो वहाँ पे बैठी थी, जब वो सीख रही थी, she went and broke a jar at his feet. और जो है उसके चरणों पे जो उसने एक पात्र को तोड़ा. When the news of Lazarus, when Jesus came after he heard the news of Lazarus, Mary ran to him and fell at his feet. और जब लाजरस के बारे में खबर मिली तो मरियम जो यीशु के पास भागी और उसके पैरों पर गिर गई. So Mary looks like the more devoted one, the more loving one, the one who understood everything about Jesus. और मरियम इस प्रकार हमें लगती है कि वो जो है उसका रिश्ता यीशु के साथ बहुत गहरा है, वो सबसे ज्यादा यीशु को समझती है. True? Yeah. क्या ये सच है? But Martha also is the same. लेकिन मार्था भी वैसी ही थी. It's just that her love for Jesus looked a little different. और उसका जो यीशु मसीह के प्रति प्रेम था वो थोड़ा अलग था. What put Martha in a spot where Jesus had to speak to her separately or address the way she was feeling was the words that she used. और मार्था के बारे में जब यीशु मसीह उससे अलग बात करते, ऐसा क्या हुआ, और वो इस बात पे निर्भर था कि मार्था ने क्या बोला. Okay? So now if you go to Luke chapter 10 verses 38 onwards, it's just like 4 verses. I'm just going to read verse 40. लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 40वां आयत. Okay, so let's go above that. Verse 39. Very interesting. And she had a sister called Mary. Now, who invited Jesus to the house? यीशु को किसने जो है न्योता दिया था घर पे? मार्था. She had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard his word. वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी. In English, it says, who also. वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी. That means Martha was also there first, जिसका मतलब and Mary was the also. जिसका मतलब है मार्था भी थी वहां पे और मरियम भी थी वहां पे. Amen? Amen, amen. But somewhere along the way, लेकिन आगे जाकर Martha got distracted with serving. और मार्था जो है सेवकाई के तौर पे जो है उसका ध्यान भटक गया उस ओर. Okay, when we say distracted, it was not she was so busy so she couldn't concentrate on what is happening over there. ऐसा नहीं है ध्यान भटक गया मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बिजी होगी कि उसको समय नहीं मिला. What she was doing became so big और वो जो कर रही थी वो इतना बड़ा बन गया that she stopped treasuring sitting at the feet of Jesus. वो जो करती थी वो इतना बड़ा बन गया उसके लिए कि यीशु मसीह के चरणों पे बैठना जो बहुत बहुमूल्य था. So a couple of things happened because she says these words. She says, Lord, do you not care that my sister has left me alone to serve? हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? Therefore tell her to help me. इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे. So first there is disbelief. पहला जो है अविश्वास है. Hey Lord, कि you don't care? कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी कुछ भी Can चिंता you नहीं? not see I'm struggling? क्या आप नहीं देख रहे हो कि मैं किस प्रकार उलझन में हूँ? Like what Pastor Lindsay said, right? जिस प्रकार पास्टर लिंसी ने कहा, Most of our not villain origin story, but generally our origin story is, Lord, how can I do this? You हमारी- called me to do this, but how will I do it? कि हम बोलते हैं परमेश्वर आप करोगे, लेकिन ये कैसे होगा? No, when the Lord says that when people say you have a calling or you know you have a calling, जब लोग बोलते हैं कि आपकी एक बुलावट है, तब you say, Lord, how can it happen? तो आप बोलते हैं कि परमेश्वर ये कैसे होगा? This is not possible for me. ये मेरे लिए संभव नहीं. Things have not happened for me the way that it should have. और जिस प्रकार होनी चाहिए थी उस प्रकार मेरे लिए बातें हुई नहीं They है. had so much of support. उनके लिए बहुत सारा सपोर्ट था. They had so much of opportunity. उनके लिए बहुत सारे अवसर थे. Pastors' children. और पासवान के बच्चे हैं. Be nice to pastors' children, okay? पासवान के बच्चों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, बर्ताव करें. They have it rough. Seriously. Can you imagine the pressure of a whole church? और पूरी कलीसिया का जो है भार होता है. And it is not that anyone's asked them to pressure. It's self-appointment. Instead of self-encouragement, we do self-appointment. ऐसा नहीं किसी ने उनके ऊपर भार डाला है, वो खुद ही उसको महसूस करते हैं. So there was disbelief. और वहाँ पे अविश्वास था. Secondly, she was defensive.
और वो जो है बहुत ही अपने आप को जो है She सुरक्षित felt- रखने की कोशिश करती She थी। felt very justified in what she was doing. वो जो है जो करती थी उसमें बहुत ही न्याय ठहराती So थी। she's saying, Lord, my sister has left me alone. वो बोलती है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, Because she's left me alone, I'm doing all of this by myself. और क्योंकि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया इसके लिए अकेला ही मैं ये सब कर रही And हूँ। now it's not letting me sit at your feet and do what I'm supposed to do. और इसकी वजह से मैं आपके चरणों में बैठ के जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही। Third, तीसरी बात, dismissive. She didn't even acknowledge Mary by her name. और उसने जो है मरियम को उसके नाम से भी नहीं पुकारा। Now everything is happening in context of who she is, Martha. और मार्था क्या है वो उसके जो है विषय में वो बातें So कर she's रही not है। even saying, Lord, see, Mary is not helping me. वो ऐसा नहीं बोल रही कि मरियम मेरी सहायता नहीं कर रही, My sister वो बोलते हैं कि मेरी बहन, is not helping me. मेरी बहन मेरी सहायता नहीं कर रही। Can you see how the world is now becoming smaller and smaller? आप देख- Martha is at the center and the world is rotating around her. आप देखिए कि मरियम जो है, मार्था जो है बिल्कुल अभी जो है केंद्र में आ चुकी है और पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द What घूम she रही है। was distracted from and what she was distracted to. वो किन बातों से जो है उसका ध्यान भटक गया था, किन बातों की ओर उसका ध्यान भटक गया था। Fourth, चौथी बात, now she's telling Jesus, वो भी यीशु से बोल रही है, she's making a demand to Jesus. वो यीशु के सामने ऐसी मांग को रख रही है। Mang is very sweet word. She's saying, tell her. कि उसको बोलो, You tell her, Jesus. इसके लिए आप उससे कहो Come help me. कि मेरी सहायता करें। See, those are siblings will understand what I'm saying. जिनके भाई बहन है वो समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। Those who don't, you're like, what? I don't know what. It जो just अकेले sounds हैं। like a normal sentence to me. जो अकेले उनको नहीं समझेगा, भाई बहन नहीं उनको नहीं समझेगा। When you have siblings, then you understand exactly how this tone is. और जब आपके भाई बहन है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे बोला गया है। The long part of it is, yeah, to her you don't want to say anything. Only when I'm sitting free, that time your eyes open. और जब मैं जो फ्री बैठती हूँ तभी आप मुझे काम देते हो, इस प्रकार का है यहाँ पे The वाक्य। short version is, tell her. और वो ये बोलना चाहती है कि उसको बोलो। And now the fifth is desperation. और पांचवी बात जो है वो बहुत ही जो है कुछ कार्य करना चाहती है, There is desperation. और कुछ वो जो है Like करना she- चाहती है, वो She wants to do something, वो कुछ करना चाहती है but it's just not happening. लेकिन हो नहीं रहा। And now she's feeling disappointed. और जो है अभी बिल्कुल She's निराशित हो getting चुकी है, irritated. वो चिंतित हो रही है। So it says Jesus was teaching, right? और लिखा गया है कि यीशु जो है वहाँ पे सिखा रहे थे, Her problem became so big उसकी समस्या इतनी बड़ी हो गई that now she's disturbing the prophet, the man of God, the son of God. कि अभी वो जो परमेश्वर के पुत्र को, नबी को जो है, जो उस वचन को सिखा रहा है उसको डिस्टर्ब कर रही है। She's stopping him from teaching and preaching. और वो जो है रोक डाल रही है कि यीशु जो है वहाँ पे सिखा नहीं पाए, प्रचार नहीं कर पाए, And saying, now Lord, solve my problem. और बोल रही है कि परमेश्वर अभी जो मेरी समस्या है आप उसका हल करें। A problem that didn't require Jesus to intervene. और ऐसी समस्या जिसमें यीशु मसीह के कार्य करने की जरूरत ही नहीं थी, She just had to look at what she was doing. उसको बस ये देखना था कि वो क्या कर रही है, She had to see, okay, wait, what is the most important thing over here right now? और उसको इतना ही देखना था कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, The source of everything that I need is in my house. और जो हर चीज का स्रोत है जो मुझे चाहिए वो मेरे घर में मौजूद He है। is speaking life inside of me. वो मेरे अंदर जीवन को बोल रहा है। So I need to just take a minute. I can continue serving, but I need to take a minute. I need to prioritize this. और मैं सेवा करती रहना, मुझे सेवा करना ही है, लेकिन एक क्षण लेना है और मुझे देखना है कि अधिकतम बहुमूल्य क्या है। She tried to control the situation. और उसने जो है उस परिस्थिति पे नियंत्रण लाना She जो है tried to कोशिश take किया। the reins of that situation from Jesus and say, Lord, let me fix this for you. और वो जो है उस समस्या की जो है उस परिस्थिति की जो बातें हैं वो अपने हाथों में लेने की उसने कोशिश करी और बोला कि यीशु मसीह मैं इसको ठीक करके देती हूँ। And suddenly, she found herself all alone in a room full of people. और एक कमरे में जिसमें बहुत सारे लोग थे उसने अपने आप को अकेला पाया वहाँ पे। Because that's what she says, right? क्योंकि उसने वहाँ पे यही बोला Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? कि क्या तुझे, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। Now her being alone became a big problem. अभी वो जो अकेली है वो बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है। Now in her case, the Lord corrected her lovingly and she came back on the path. उसके समस्या में परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम से उसको सुधार किया और वो वापस मार्ग में आ गई। But then there was a man named Elijah लेकिन एलाइजा नामक एक व्यक्ति था who said something along the same lines.
और इसी प्रकार उसने कुछ बातें बोली। In 1 Kings chapter 19. पहले राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय आयत। There is a whole exchange of conversation that happens above, but there is this one particular verse where the Lord asked him, "What are you doing here, Elijah?" और जो है उस 19वें आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर उससे पूछता है कि एलिजा तू यहाँ पे क्या कर रहा है। And instead of saying where he was, और जो है ये बताने के बजाय कि वो कहाँ है, he started talking about what was entitled to him. और उसको क्या दिया गया था वो उसके बारे में जो है बोलता जाता है। And he says, "I'm all alone, Lord." वो बोलता है कि परमेश्वर मैं जो है अकेला हूँ। How did Elijah come so far? एलिजा इतने दूर तक कैसे आया? How did he come so far from hearing God to now saying, "Lord, I'm all alone"? वो इतनी दूर कैसे आ गया जहाँ पे वो परमेश्वर To की आवाज़ सुनता stopping था? rain in a land, और एक देश के ऊपर जो है बरसात को रोकने to के saying, "Lord, सफर I'm तक, by myself." उस सफर तक यहाँ पे इस जगह बोलते हुए कि परमेश्वर मैं अकेला हूँ। After all these high points और- that happened in Elijah's life, और एलिजा की जिंदगी में इतने जो बड़े कार्य होने के भी बावजूद Jezebel sends him a word. जज़बेल जो है उसको एक वाक्य इस प्रकार भेजती है। And she says, "So let the gods do to me and more also, if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time." और यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। And verse 3 in the NKJV it says, "And when he saw that, और यह देखकर he arose and ran for his life." यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। She had not come behind him yet. और वो जज़बेल उसके पीछे नहीं आई She थी अब sent a तक। messenger with the word. उसने जो है जज़बेल ने एक संदेशक को संदेश के साथ भेजा था उसके पास। But what Elijah did, लेकिन एलिया ने क्या कहा? he allowed that word to infiltrate his thoughts. और वो जो है जो इज़बेल ने जो है उसके पास वचन भेजा था उस शब्द को उसने अपने अंदर प्रवेश देने की अनुमति And दी। that when that word came to him through Jezebel, और जब जज़बेल के द्वारा वो शब्द उसके पास आया he had an image of what that would look like. और वो क्या होने वाला है उसके बारे में उसकी एक चित्र थी, कल्पना थी। That image replaced everything that God had done for him till that point. और उस समय तक परमेश्वर ने जो भी उसके लिए किया था वो जो डरावना जो चित्र था उसके सामने उसके बदले में आता गया। Think about it. आप सोचे उसके बारे में। Elijah goes from absolute anonymity to come and challenge a king. और जो है बिल्कुल ही अकेलेपन से वो इस प्रकार आ जाता है जहाँ पे वो एक राजा को चुनौती देता है। From there he is taken to a brook और उसके बाद वो जो है एक तालाब की ओर उसको लेके जाया जाता है where his food is coming through birds. और जहाँ पे पक्षियों द्वारा उसका आहार आता है, खाना आता है। He is drinking water from the brook. और उस तालाब से वो पानी पी रहा है। Now see, the Lord is not telling him what is happening in advance. He's telling him what to do next. परमेश्वर जो है क्या होने वाले उसके बारे में नहीं, लेकिन अगला क्या करना है परमेश्वर उसको वो बताते So हैं। he is there, he's drinking water from this brook. और इस तालाब से वो पानी पीता है। He must have been seeing the brook is beginning to dry up. वो देखता है कि तालाब सूखने वाला है। And he must be like, okay, Lord, this brook is kind of not as full as it was when we came. और वो एलिया जो है परमेश्वर से पूछता है कि जब मैं आया था उस समय भरा हुआ नहीं है ये तालाब। And then they say, okay, fine, that's fine. That's dried up. Now next location. और परमेश्वर बोलते हैं कि सूख चुका है, अभी अगले स्थान की ओर आ जाओ। He comes there, he asks the widow for food. अगली जगह में आता है, विधवा से खाना मांगता है। That sister is going through her whole life problems. और उस विधवा के जीवन में बहुत समस्या So चल रही she's है। saying, what will I give you? I only don't have, I'm going to die. वो औरत बोलती है मैं तुमको क्या दूंगी, मैं ही मरने वाली हूँ। But still Elijah encourages her. लेकिन फिर भी एलिया जो है उसको प्रोत्साहन देता है। And there is miraculous bread and water in that place. और उस घर में जो है रोटी और जल जो है चमत्कार रीति से आ जाता है। Then in that place where now he is established as a voice. और वहां पे उस जगह पे वो जो एक आवाज के तौर पे वहां पे स्थापित हो जाता In है। the same place now there is another problem. उसी स्थान पे एक और समस्या आ जाती है। Her son dies. उसका बेटा मर जाता है। So now again he's like, Lord, we have to fix this. वो बोलता है परमेश्वर इस समस्या का हल हमें And निकालना है। he takes the child to God. वो जो है उस बच्चे को परमेश्वर के पास लेकर जाता है। And he says, Lord, we have to heal. Now come on, let's do this. और वो बोलता है परमेश्वर इस बच्चे को हमें चंगाई देनी The है। child is healed. He's risen from the dead. और वो बच्चा जो है वो Resurrected. जीवित हो जाता है, पुनरुत्थान हो जाता है उसका। And from there now he's again on the run.
और वहाँ पे वो फिर से भागता है उस जगह से, And now he's come to Ahab again. और अभी वो आहाब राजा के पास आ जाता है, And he's not gone. He sent somebody to Ahab saying, "You come meet me." और वो आहाब राजा के पास किसी को भेजता है और बोलता है कि मुझसे आके मिलो। Elijah's having high point after high point after high point. और एलिया के जीवन में जो है बिल्कुल उत्तम स्थान जो है, रीति से चीजें होती ही रहती है। No doubt, before it was a high point, it first came as a problem. और जो है उस ऊंचे स्थान में आने से पहले वो एक समस्या के तौर पे उसके But पास because आती he है। depended on God and he looked to God for the problem, और क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था उस समस्या के विषय में, he also got the answer for the problem. उस समस्या का जवाब भी उसको मिला। Okay? Now he tells all the people of Israel, you all come up the mount, call all the prophets of Baal and Asherah, and we will see whose God is God. और अब एलिया बोलता है कि सारे जो बाल और अशेरा के जो है पुरोहित है उन सबको बुला ला, अभी हम देखेंगे कि इसका परमेश्वर है। So that also, Elijah comes out as the winner. और उस स्थान में भी एलिया जो है वहाँ पे जयवंत होता है। Yes. Right? And after all of this, और इस सब के बाद and it rains, वहाँ पे बरसात होती है Ahab goes and tells his wife what happened. और राजा आहाब जो है अपनी पत्नी को जाके बताता है कि क्या क्या हुआ। And all she does is sends a word. और वो क्या करते हैं, सिर्फ जो है एक आवाज, एक संदेश को भेजती है। She didn't send an army. बड़ी सेना नहीं भेजी उसने, She didn't chop off the head of somebody and say, see here, this is going to happen to you. किसी के सर को काट के वो नहीं भेजा, She just sent a word. सिर्फ एक संदेश को भेजा। A word strong enough to alter his thoughts. और ये संदेश इतना सामर्थी था कि उसके मन के विचारों को, एलिया के मन के विचारों A को word मोड़ so सका। strong that suddenly Elijah forgot that he can hear the voice of God. और वो संदेश इतना सामर्थी था कि एलिया भूल गया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। It says when he saw that, और इसमें इस प्रकार लिखा है कि जब उसने ये देखा, he rose and he ran for his life. और वो जो है वहां वो देख के एलिया अपने प्राण लेकर भागा। And now he is cutting connections with everyone. और अब जो है वो सबसे जो है रिश्ते तोड़ रहा है, Because it says he left his servant there as well. क्योंकि वहां पे इस प्रकार लिखा गया है, अपने सेवक को वहीं उसने छोड़ दिया। He was not alone. वो अकेला नहीं था, He wanted to be alone. वो चाहता था कि वो अकेला हो, Because his problem became so big. क्योंकि उसकी समस्या इतनी बड़ी हो गई। It doesn't justify if there is someone with him. और जो है इस बात की न्याय नहीं होती कि उसके साथ कोई है। So he's like, I'm cutting off everything. I'm running away. इसके लिए वो अपने साथ जो भी उन सबको छोड़ देता है और भाग जाता है। So tomorrow when someone asks him anything, he say, I was all by myself. और कल जब उसको There कोई was पूछता- nobody with me. तो वो ऐसा बोलेगा कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला था। He got distracted by the voice of Jezebel. और जezebel का जो संदेश उसके पास आया, उसकी वजह से एलिया जो है उसका ध्यान भटक गया। Do you know what happened after he got distracted? क्या आपको पता है उसके बाद जब उसका ध्यान भटक गया उसके बाद क्या हुआ? He became self-righteous. तो वो जो है खुद ही अपने आप को धर्मी समझने लगा। He says, so he's gone and now he's telling the Lord. अभी वो परमेश्वर को बोलता है, Very painful. He says, and he prayed that he might die and said, it is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers. परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। Elijah, really? Are you comparing yourself? Are you saying you're exactly like the generation that went before you? एलिया, क्या तू अपनी तुलना अपने पुरखों से कर रहा है? Did they go and call down fire from heaven? क्या उन्होंने जाकर जो है स्वर्ग से अग्नि को उतारा? Did they stop rain from happening? क्या उन्होंने जो है बरसात को ना होने से रोका? More than that, did they hear the voice of God? और उससे भी ज्यादा क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना? He disassociated himself from everything that God had done within him and he accepted the baggage of the past. और परमेश्वर ने उसके लिए जो भी किया उन सब से उसने रिश्ते नाते तोड़ दिए और उसकी जो पिछली हुई बीती हुई जिंदगी थी उसका भार वो अपने साथ लेकर आगे And he बढ़ा। said, Lord, I don't deserve to live. और वो बोलता है कि परमेश्वर, मुझे जीने का कोई हक नहीं। The Lord still said, okay, just, let him get some sleep. He should be okay after that. परमेश्वर ने कहा कि उसको थोड़ा सोने दो, शायद उसके बाद ठीक हो जाएगा। That's what we do with Levi.
When he gets too cranky, we know he just needs a nap. निवाई के साथ भी ऐसे ही करते हैं, And sometimes a hug as well. गले मिलते हैं, सुला देते हैं, ठीक हो जाता है। Exactly. Jesus, the Lord thought Elijah also, it'll be the same. परमेश्वर को लगा कि एलिया के साथ भी वैसा ही होगा। But in Elijah's case, I think the Lord wanted to remind him that I am still a divine God. I do things that man cannot understand. So he sent an angel who cooked food for him. और परमेश्वर जो एलिया को बताना चाहता है कि मैं अभी भी परमेश्वर हूँ, और ऐसे स्वर्गदूत को भेजा जो उसके लिए खाना भी पकाता था। Which woman does not want to know this angel? सी कौन सी औरत है जो इस स्वर्गदूत को जानना नहीं चाहती? Because it says in verse 6, it says, and he looked, and there by his head was a cake baked on coals और and a jar of water. उसके सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा था। So someone has cooked food for him and kept over there. किसी ने उसके लिए खाना पकाया है और वहाँ पे रखा है। He's so blinded by his problem. वो अपने समस्याओं से इतना अंधा हो चुका है, He's not seeing that this is not normal. वो ऐसा नहीं समझ रहा है कि ये This is असाधारण है। supernatural. वो ऐसा नहीं समझ रहा है कि असाधारण है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये अलौकिक है। He ate, उसने खाया went to sleep. और फिर लेट गया। We do that sometimes. हम भी कभी कभार ऐसा ही करते हैं। Our problem is so big. हमारी समस्या इतनी बड़ी But है, we've gone to church this Sunday. लेकिन रविवार को हम कलीसिया गए। Throughout the sermon, we are thinking of our problem. पूरे प्रचार में हम अपने समस्या के बारे में सोच रहे Hot हैं, bread has come to you. और गरम वो रोटी आपके पास जो है रखी गई है, You've eaten. आपने उसको खाया है, It has done nothing inside of you apart from fed you enough to keep you alive. और आपको जीवित रखने के लिए आपको खिलाया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया आपके अंदर। And then you go to sleep. उसके बाद आप सो जाते हो, And when you wake up, और जब आप जगते हो you don't even know you ate bread. आपको पता भी नहीं चलता कि आपने वो रोटी खाई है। So then there was a second time. और दूसरी बार He ate again. उसने फिर से खाया, He drank again. फिर से पिया। Now how do I know this was miracle bread and water? मुझे कैसे पता ये चमत्कार रीति से इसके पास जो है ये सब Because it आया? says he went in the strength of that food for 40 days and nights. और क्योंकि वहां पे लिखा है, और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात वो चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। He reaches there वहां पे पहुंचता है, and he goes there वहां पे जाता है, and the Lord passes by him. और परमेश्वर जो है उसके पास से गुजरता है। Okay, we know all of this, but I want to come to the verse that says, in verse 13, it says, what are you doing here, Elijah? और 13वें आयत में परमेश्वर यहाँ से उससे पूछता है, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? I've been very zealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, killed your prophets with the sword. I alone am left, and they seek to take my life. उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों की भी खोजी है। So now the Lord is like, okay, go back on your way, परमेश्वर कहता है कि तू वापस तेरे मार्ग पर चले जा, anoint Hazael as king, और हेजल को जो है राजा के तौर पे नियुक्त कर दे, anoint Jehu as king of another region, और येहू को जो है एक जो है जगह का जो है राजा उस समान अभिषेक कर दे, and Elisha और एलाइशा you shall anoint as prophet in your place. तुम्हारे जगह पे एलाइशा को नबी के तौर पे तुम नियुक्त करो, Because you're alone, no? क्योंकि तुम तो अकेले हो ना, There's nothing, nobody for you. तुम्हारे लिए तो कोई नहीं, Also, you want to die. और तुमको मरना भी है। So, anoint everybody else in your place. इसके लिए अपने स्थान पे बाकी सबको अभिषेक करो। I relieve you of your duty. तुमको तुम्हारे जिम्मेदारियों से मैं छूट देता हूँ। As women, we take a lot of freedom with how we use our tongue. और औरत होने के नाते हम जिस प्रकार अपने मुंह का उपयोग It's करते हैं, हम not उसमें just a woman thing anymore, very honestly. It's just anybody. और कोई भी जो है जिस प्रकार बात करता है उसमें बहुत सारी आजादी को वो ले लेता है, उसका फायदा उठाता है। We just keep grumbling, murmuring. Before we realize it,
that has become the center of who we are. और हम जो इतना गुड़गुड़ाते हैं और ऐसा हो जाता है कि हम भी वैसे ही बन जाते हैं। And when the Lord comes to us, और जब परमेश्वर हमारे पास आता है, see, we don't have Jesus in person with us. और यीशु जो है वाकई जो है हमारे साथ ऐसा We have His manifest presence with us. और उनकी जो है प्रकटीकरण वाली उपस्थिति हमारे But साथ है। sometimes we are so out of touch with the Spirit of God लेकिन हम जो है परमेश्वर की जो आत्मा है उसके साथ कभी-कभार हमारा रिश्ता इतना टूट जाता है, इतना अलग हो that जाता है। even though He's here blessing the person right next to me, we don't feel it because our problem is greater. और वो हमारे बाजू में रखे हुए जो व्यक्ति है उसको इतना आशीषित करते तब भी हमें अनुभव नहीं होता है क्योंकि हमारी समस्या इतनी बड़ी होती है। The victim mentality. और जो पीड़ित मनोभाव है, Like these are two things that work hand in hand against every woman. और ये दो बातें हैं जो हर औरत के विरुद्ध कार्य करती है। The victim mentality वो पीड़ित स्वभाव and a nagging tongue. और जो है शिकायती जो आप बातें करते रहते हो, Because गुड़गुड़ाते now रहते you're हो। not just talking about your problem. अभी आप अपने सिर्फ जो है समस्या के बारे में नहीं बोल रहे, You have become ungrateful. आप जो है बिल्कुल धन्यवाद नहीं देने वाले व्यक्ति बन चुके हो। Like, what if Elijah just took a moment और अगर जो है एलिया ने अगर एक क्षण लिया होता and said, I am tired. और उसने ये बोला होता कि मैं थक गया हूँ, Lord, I am exhausted. कि मैं बहुत थक गया हूँ I परमेश्वर। feel like I'm running from one place to another, sometimes for bread, sometimes to sleep, sometimes for water, sometimes for my life. I am tired. और परमेश्वर में थक गया हूँ, एक जगह से दूसरे जगह खाने के लिए, पीने के लिए, अपने प्राणों के लिए मैं भाग भाग के थक गया हूँ। But I don't want to lose sight of what I'm meant to do. और लेकिन पिता जो मैं जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया है उस बात की उस योजना को उस उद्देश्य को खोना नहीं चाहता I पिता। don't want to lose sight of who I am in you. पिता जो मैं हूँ आपके अंदर उसके विषय में पिता मैं उस उद्देश्य को खोना नहीं चाहता I पिता। don't want to lose sight of what you have called me to do. पिता आपने जो मेरे ऊपर बुलावट रखी है पिता उसके समझ के मैं बाहर नहीं जाना चाहता पिता। So tell me, Lord, how do I find rest? इसके लिए परमेश्वर आप मुझे बताएं कि मैं आराम कैसे पाऊं। What do I do to snap out of this place that I've got into? पिता जो मैं इस स्थान में आ गया हूँ फंस गया हूँ इस जगह से मैं बाहर कैसे आऊं पिता। How do I take out the voice of Jezebel from my head? और मेरे अंदर जो येसेबेल की जो आवाज है शब्द उसको मैं बाहर कैसे निकालूं परमेश्वर। Oh Lord, can you speak to me so that I cannot hear any other voice but your voice? परमेश्वर क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं ताकि मैं कोई और बातें कोई और शब्द आवाज ना सुन सकूं पिता। It was okay that he went away, और ये चलता है कि वो जो है परमेश्वर जो है दूर चला गया as long as he was still talking to God. और जब तक कि वो परमेश्वर से बात करता था तब तक ठीक था। But if God was talking to him, I don't think he would have had the opportunity to go away. लेकिन अगर परमेश्वर उससे बात करता तो शायद उसको अवसर ही नहीं मिलता दूर Because the भागने Lord का। doesn't need to remove you from a place to heal you. क्योंकि परमेश्वर को आपको एक जगह से दूसरे स्थान में रखने की जरूरत नहीं अगर वो आपको चंगाई देना चाहता You है। don't have to stop going to church because your heart is broken and the Lord needs to heal you. और आपको जो है अगर आपका दिल टूटा है अगर आपको चंगाई की जरूरत है तो ऐसा नहीं है कि आपको कलीसिया जाना Can you बंद करना imagine है। if Martha was upset with Jesus? आप जो है कल्पना करें अगर मार्था जो है यीशु से जो निराशित थी, If she said, I invited you to my house. अगर वो ऐसा बोलती कि मैंने ही तुमको मेरे घर पे न्योता दिया, You didn't take my side. आप जो है आपने मेरे साइड नहीं लिया, You didn't speak up for me. आपने मेरे लिए बात नहीं करी, So I don't want to think about you anymore. इसके लिए आपके बारे में अभी मुझे सोचना नहीं। And then when Lazarus would have died, और उसके बाद जब लाजरस की मृत्यु हुई होती that story would have ended with Lazarus going inside the tomb. तो वहां पे उस कहानी का अंत हो जाता कि लाजरस जो है उस गुफे में अंदर चला गया है, कब्र में अंदर And चला that गया is है all. और उसका अंत वैसा ही हो जाता। But because Martha allowed herself to be revived in Christ, और क्योंकि मार्था ने अनुमति दी कि वो मसीह में अपने आप को फिर से जो है because जीवित she कर सके, allowed herself to find strength in Christ, और क्योंकि उसने अनुमति दी कि मसीह में फिर से सामर्थ को पाए, because at the end of the day, if he has corrected me, it is because he loves me. और क्योंकि अगर उसने मुझे सुधार दिया है वो इसलिए है क्योंकि वो मुझसे प्रेम Because at करता the है। end of the day, if I am broken, he is the master potter. He will put me together again. और क्योंकि अगर मैं टूट गई हूँ तो वो जो इस प्रकार का कुम्हार है जो मुझे फिर से जोड़ेगा। She found hope उसने आशा को even after her brother died. पाया और उसके भाई के मरने के बाद भी उसने आशा को पाया। She sent a word before he died when he was sick. She sent a word, say, Jesus, come.
और जब उसका भाई बीमार था तो उसने जो है इस प्रकार का संदेश भेजा और यीशु को जो है वहाँ पे न्योता दे, यीशु को बुलाया वहाँ पे। The one you love, आप जिससे प्रेम करते हो, he's not well. वो आप जिससे प्रेम करते हो वो बीमार है। And Jesus came और यीशु आए and he spoke to a dead Lazarus. और एक मृत लाजरस से यीशु ने बात किया And Lazarus came back to life. और लाजरस जो है फिर से जीवित हो उठा। But can you imagine if Martha's problem was her biggest thing? आप कल्पना करें अगर मार्था को जो समस्या था वो बहुत बड़ा था। Mary not helping her was her biggest issue. मरियम जो है उसकी सहायता नहीं करी, वो उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। What is the biggest challenge in your eyes today? और आपके नजर में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आज? What is the biggest challenge in your mind today? आज आपके मन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? Don't like Elijah speak death over yourself. और एलाइजा की तरह आप अपने ऊपर जो है मृत्यु की घोषणा ना करें। See, Elijah is still a powerful prophet. एलिया जो है अभी भी सबसे सामर्थी जो है नबी है। There was a reason why he was at the transfiguration. और जो है एक कारण है कि जो वो उस जो है ट्रांसफिगरेशन के पर्वत पे वो था। While you and I can dismiss people based on that one story that we know about them, Jesus does not do that. और क्योंकि हमें वही कहानी के बारे में पता है, इसके लिए यीशु जो है हमें न्याय नहीं करता। The world is the cancel culture, right? Today in the world. और जो है संसार में जो है इस प्रकार का एक संप्रदाय है where if someone does something wrong, even in the church, the whole world has an opinion about it, and they don't feel like what has done to them is justified till the other person is literally torn to shreds. और जहाँ पे कलीसिया में किसी के साथ बुरा होता है तो उसके आसपास के लोगों की बहुत सारी राय होती है, जब तक कि वो व्यक्ति जो है टूट नहीं जाता। But that's not how God deals with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसे कार्य नहीं करता। Thank God that is not how He deals with us. परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसे Just कार्य because नहीं my करता। sin looks different from your sin doesn't make me better than you. और क्योंकि मेरा पाप आपके पाप से बेहतर नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ठीक हूँ। Thank God for the merciful hand. परमेश्वर का धन्यवाद कि उसकी करुणा हमारे साथ है। थैंक यू। Martha called out to Jesus, मार्था ने यीशु को बुलाया and Jesus came. और यीशु आए। She didn't let her ego come in the way. तो मार्था ने अपने घमंड को बीच में आने नहीं दिया। Women have egos. और औरतों में घमंड होता है। It's true. सच्ची बात है। Probably even bigger than how a man's ego is. और शायद जो आदमी में जो घमंड होता है शायद उससे भी बढ़कर होता है घमंड। Because we do everything, you know. क्योंकि हम सब कुछ करते हैं। Everything. क्योंकि हम सब कुछ करते हैं। The narrative in our head is, I did this in the morning, I did this in the day, I did this for that person, I did that for that person. क्योंकि हम हमारे मन में बोलते रहते हैं कि मैंने घर में सुबह से शाम ये सब किया, उस व्यक्ति के लिए ऐसा सब किया। हम हमारे मन में सोचते ही रहते हैं ये बात। And our ego gets bigger, bigger, bigger. और हमारा जो वो घमंड है वो बड़ा ही होता रहता So है। when there's a mild inconvenience, और जहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ जाती है, then that becomes, how can this happen to me? जब छोटी सी भी दिक्कत आ जाती है आप सोचते हो कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। First the enemy is blamed, the devil. पहली बात जो है वो शत्रु को हम जो है दोष देते हैं। Then everybody else around you is blamed. फिर उसके आपके आसपास जो भी होते हैं उनके ऊपर दोष लगाते हैं हम। And then before you know it, you're like cancelling yourself out from everything. और इसके पहले कि आप भी जाने, आप बाकी सब से जो आपके पास है उन सब से रिश्ते तोड़ देते हैं। Some of you even speak death over yourself. आप में से कुछ लोग अपने ऊपर मृत्यु की भी घोषणा करते हैं। Not physical death, शारीरिक मृत्यु नहीं, mentally, emotionally. भावुक रीति से अपने मन में आप उस मृत्यु को घोषणा करते हो। Elijah was just tired. एलिया जो है बहुत थका हुआ था। He went from one battle to another. वो एक युद्ध से दूसरे युद्ध तक गया। He got exhausted. वहां पे थक गया। And instead of finding strength in Jesus, और यीशु में सामर्थ पाने के बजाय he asked God to just end it all. और उसने परमेश्वर से बोला कि सब कुछ खत्म कर दे। May that not be your story. और वो आपकी कहानी ना बने। When you find your strength running low, जब आप देखते हो कि आपकी सामर्थ कम हो रही है, find yourself at the feet of Jesus. तो अपने आप को आप यीशु मसीह के चरणों पर पाए। Do what Martha and Mary did. और जो मार्था और मरियम ने किया आप वही करें।
find yourself at His feet. और अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में पाएं। Allow the words of the Savior wash over you. और जो इस उद्धारकर्ता के वचन वो आपके ऊपर आपको धो दे। And when you look into Jesus' eyes, और जब आप यीशु के आंखों में जब आप देखोगे, may you see what He sees about you. आप वो देखें जो यीशु आपके बारे में देखता है। And may you tell yourself, और तब आप अपने आप को ऐसे बोल पाए, who I am today is not forever. जो मैं आज हूँ वो हमेशा के लिए नहीं है। What I see in Jesus' eyes is my tomorrow. जो मैं यीशु के आंखों में देखता हूँ वो कल के लिए है। I will find strength और मैं सामर्थ को पाऊंगी and I will rise again. और मैं फिर से उठूंगी। Amen.